Yes, on the series of this application of biotechnology, today we are going to start what is transgenic animal. Till we have seen healthcare sector and what is the use of biotechnology in agriculture, then what is the use of biotechnology in genetically modified organism, in which we have studied transgenic plants. Okay, so today we are going to start transgenic animal. So there are various necessity, और there are various आप बोल सकते हो कि एक क्यों ज़रूरत पड़ रही है, why there is a need of this transgenic animal to develop. Yes, so there are various purpose for which the recombinant DNA technology has been used in the animals. Okay, so first we can say that is used for the study the normal physiology and development of gene, that it was functioning or not. कि हमने कोई जीन को इंसर्ट किया और उसकी फिजियोलॉजी, उसके बिहेवियर, स्पेसिफिक जीन के उसके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हमको क्या इफ़ेक्ट होता है ये जानने के लिए वी आर यूजिंग द एनिमल्स. ओके, सेकेंड हम क्या बोल सकते हैं, टू स्टडी द जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीज़. कोई डिसीज़ के लिए कुछ जो जीन्स है दे आर रिस्पॉन्सिबल, तो अगर उसकी स्टडी हमें करनी है, सो फॉर दैट स्टडी, फॉर द फॉर बायोलॉजिकल स्टडीज़, so all the medical research and the studies we are using animals. Yes. Third, we can say that it is used for the biological products. It is used for the biological products means whatever the proteins, enzymes, whatever, if you want in the large amount, we can introduce that gene in the genome of the animal, and it can easily be developed or it can easily be synthesized in the body of the animal. Yes, so from that we can easily obtain the desired product, okay, of that gene. So next we can say it fourth is the vaccine safety. Means कि how it is useful, कि अगर like जो भी वैक्सीन आता है तो उसके जो ट्रायल्स होते हैं, तो व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट, उसका क्या बिहेवियर, क्या इफ़ेक्ट होता है एनिमल बॉडी में. तो ह्यूमन बॉडी में डायरेक्टली स्टडी ना करके वी आर स्टडिंग फर्स्ट इन द एनिमल बॉडी. फ्रॉम डैट वी कैन रिकग्नाइज कि हाँ इसमें ये चेंजेस हो सकते हैं, या उसका बिहेवियर क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा. दे ऑल द थिंग्स वी कैन स्टडी फ्रॉम द वैक्सीन फॉर दिस वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग. यस. Then next we can say it is used for the to test the clinic for the chemical effect. What is the tox what is the toxicology of the drug. कोई भी ड्रग, कोई भी केमिकल हम इंसर्ट करते हैं एनिमल के ऊपर, तो उसका इस इफ़ेक्ट क्या होगा इन द ह्यूमन बॉडी. तो दैट कैन easily be studied with the help of the animals. So there are various purpose by which the transgenic are used. Yes. So there are one by one we are going to study what are the reasons for which the transgenic animals has been used for the human welfare. Yes. So many of the animals such as mice, rat, rabbit, pig, sheep, cow, fowl, fish have been produced through recombinant DNA technology. The term transgenic animals refer to animals in which there has been deliberate modification of the genome. क्या कर रहे हैं हम, उसके जीनोम को मॉडिफाइड कर रहे हैं. The material responsible for inherited characteristics in contrast to spontaneous mutation. The foreign DNA is introduced into the animal. हम क्या कर रहे हैं, we are introducing the foreign DNA using the DNA recombinant DNA technology, and then must be transmitted through germ cell line so that every cell including germ cells of the animal contains the same modified genetic material. So here we are introducing the foreign DNA into the
genome or into the genome of the animal, from where we can get the we can get the modified product, and indirectly it will modify the genetic material of the animal. Yes, a representative but non-inclusive list of purpose for which the transgenic animal have been used indicate the wide-ranging application in this biotechnology. So there are various application in which how the transgenic animal has been used, the purpose for what is the need. So it is the purpose for which the transgenic animals has been used. So one by one we are going to see this purpose. So first, in the medical research, the transgenic animals are used to identify the function of specific factors in complex homeostatic system through over or under expression of a modified gene, the inserted transgene. In medical research, we can easily understand what is the function of a specific factors, or we can study what is the function of the specific gene and under a controlled environmental conditions. Yes, कि हम इजीली देख सकते हैं कि क्या इफ़ेक्ट हो रहा है अगर हम कुछ उसमें फैक्टर डाल रहे हैं या उसमें कुछ जीन को ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो व्हाट इज़ द बिहेवियर, व्हाट इज़ द उसमें क्या चेंज आ रहा है, सारे कंडीशंस हम क्या कर सकते हैं इजीली यहाँ पे इजीली स्टडी कर सकते हैं. In toxicology, sorry, toxicology means जो भी केमिकल है उसके टॉक्सिसिटी को स्टडी करना. जैसे कोई भी केमिकल या कोई भी ड्रग जब आता है तो हाउ मच इट इज़ गिवन टू द एनिमल, सो फॉर द उसका स्टैंडर्ड डोज कितना रहना चाहिए. फॉर टू स्टडी ऑल दिस वी आर रिक्वायर्ड सम, हमें कुछ ना कुछ होस्ट की ज़रूरत पड़ेगी. तो हियर द एनिमल्स हैज़ बिन यूज. सो इन टॉक्सिकोलॉजी एज रिस्पॉन्सिव टेस्ट एनिमल्स डिटेक्शन ऑफ टॉक्सिकेंट्स हम इजीली वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं. नाउ डेज विद बहुत सारे रूल्स आ गए हैं, बहुत सारे हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो चुकी है, जिसके कारण एनिमल पे ये सारे जो भी टेस्ट है ये बंद हो चुके हैं. नाउ डेज वी आर यूजिंग, हम सीधे सेल लाइंस का ये सीधे सेल निकाला जाता है जैसे, और उसको यूज़ किया जाता है, अदर टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है rather than using the animals. विद द कुछ रूल्स है, नॉर्म्स है, उसके अंडर जितना हम कर सकते हैं उतना ही यूज़ कर सकते हैं, हम ज़्यादा एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते. इन मैमेलियन डेवलपमेंट जेनेटिक्स, हम मैमल्स की डेवलपमेंट कैसे होती है उसका हाउ, तो उसके जीन लेवल पे क्या स्टडी करनी चाहिए, कैसे स्टडी करनी चाहिए, क्या इफ़ेक्ट होता है, सारा कुछ हम अगर स्टडी करना है तो वी कैन ईजिली स्टडी फ्रॉम दिस animals. In molecular biology, the analysis of regulation of gene expression make use of evolution of a specific genetic change at the level of whole animal. So here at the molecular biology, जहाँ पे हम जीन्स से रिलेटेड अगर कुछ बात करते हैं उसमें कुछ उसके जीन्स एक्सप्रेशन की अगर हम कुछ बात करते हैं, अगर वो हमें स्टडी करना है तो वी कैन easily study with these animals. In the pharmaceutical industry, the targeted production of pharmaceutical protein, drug production, and product efficacy testing, these all can be done with the help of using the transgenic animal. See here one diagram is given. there वहाँ पे क्या लिखा है उन्होंने, ट्रांसजेनिक फिश फॉर द प्रोटीन रिच मीट. फिश को क्या किया यहाँ पे उन्होंने, some gene have been introduced by which there is an increase in the growth of the fish, or there is an increase in the protein which they have released. कुछ प्रोटीन जो फिश अपने लिए अपने ग्रोथ हार्मोन्स के अपने खुद के ग्रोथ के लिए कुछ रिलीज करते हैं, और if it is beneficial to us, so for that they are giving, उसमें क्या कर रहे हैं वो प्रोटीन रिच उसके मीट के लिए या फिर उसके प्रोटीन के लिए वो ऑप्टेन करने के लिए यहाँ पे उसको क्या बोल सकते हैं आपकी ट्रांसजीन किया गया, उसमें कुछ ना कुछ जीन को ऐड किया गया ताकि उसमें अच्छा मीट हो, उसमें अच्छा प्रोटीन प्रोड्यूस हो, एंड दैट कैन इजीली बी टेकन बाय द ह्यूमंस. यस,
Then transgenic cow as bioreactor. Transgenic cow is a bioreactor, मीन्स आप बोल सकते हो बायोरिएक्टर इज एन apparatus, जैसे नॉर्मली अगर बात करें कि इट इज़ एन apparatus इन विच ऑल द बायोलॉजिकल कंडीशन आर गिवन एंड जिसमें एक रिएक्शन पर्टिकुलर हो सके. सो हियर इट इज़ नॉट एन apparatus, इट इज़ अ लिविंग थिंग जिसमें आप सारे उसकी चीज़ों को स्टडी कर रहे हो. यस. देन ट्रांसजेनिक माउस एज एनिमल मॉडल फॉर रिसर्च. जो चूहे हैं वो शुरू से ही बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे जो भी लैब स्टडी है उसके लिए यूज़ किया जाता है, बिकॉज देयर लाइफ साइकिल इज़ बहुत छोटा होता है. लार्ज अमाउंट में हमें वहाँ पे जो भी इन्फेंट उसके निकलते हैं वो इजीली उनकी स्टडी कर सकते हैं हम. सो बिकॉज ऑफ सर्टन रीज़न जो है माइस के ऊपर ये सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा स्टडी की जाती है. देन ट्रांसजेनिक फाउल फॉर मीट एंड एग. यस. सो यहाँ पे आप देखो इससे मीट, फाउल से मीट और एग के लिए भी उसमें उसको ट्रांसजीन किया जाता है, बिकॉज इट इज़ यूज फॉर द ह्यूमन वेलफेयर एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर अवर हमारा प्रोडक्शन लेवल या हमारे इनकम सोर्स को और बढ़ाता है. सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस वी आर यूजिंग दिस ट्रांसजेनिक एनिमल मोस्ट ऑफ द टाइम. यस. इन बायोटेक्नोलॉजी एज प्रोड्यूसर ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन्स. यहाँ पे हम अगर कोई प्रोटीन के बारे में उसको प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो वी कैन इजीली प्रोड्यूस genetically engineered hormone to increase milk yield, meat production, genetic engineering of livestock, and in aquaculture affecting modification of animal physiology or anatomy, cloning procedure to reproduce specific bloodline. This can be the method by which we can use दिस जेनेटिकली इंजीनियर्ड हॉर्मोन्स. तो ये हॉर्मोन्स को हम डाल सकते हैं ताकि हम उससे ज़्यादा अमाउंट में मिल्क ले सकें, मीट ले सकें. यस. डेवलपिंग एनिमल्स स्पेशली क्रिएटेड फॉर यूज़ इन xenografting. Xenografting is a Xenografting is a procedure in which एनिमल सेल और एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज़ में आप क्या कर रहे हो, उसका ग्राफ्टिंग कर रहे हो. सो फॉर दैट ऑल्सो देर इज़ यूज़ द डेवलपिंग एनिमल स्पेशली क्रिएटेड फॉर यूज़ इन जीनोग्राफ्टिंग. मतलब आप एक एनिमल से दूसरे एनिमल में एज अ फॉर टिश्यू ग्राफ्टिंग, सेल को कुछ उसमें ग्राफ्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है. सो for that you can use these animals. So these are the various purpose for which the animals has been used. So one by one there is covered all this point, that the transgenic mice and the cancer research. Though अब ये जो भी हम जीन डाल रहे हैं, जो भी उसका इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, वो सारी स्टडी हम इजीली माइस पे कर सकते हैं. या फिर व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ द केमिकल और ड्रग ऑन विच कैन हेल्प टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द कैंसर. तो उसके लिए भी ये हम माइस का यूज़ कर सकते हैं. दो लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन विद ट्रांसजेनिक माइस that have been modified using a particular oncogene and thus develop a certain type of cancer. Question concerning the relationship between oncogene and cancer development could be answered. तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि कि क्या इफ़ेक्ट हो रहा है. ऑन्कोजीन्स, दैट जीन्स ऐसे जीन्स होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं. अब ये जो स्टडी है तो हम इजीली स्टडी कर सकते हैं कि विच जीन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर विच कैंसर. तो ये सब स्टडी करने के लिए वी आर यूजिंग द माइस. सो थियोरेटिकली सम एनिमल्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर रिसर्च इनटू कैंसर ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ मैलिग्नेंसी. सो इसकी स्टडीज़ को हम कैंसर की ट्रीटमेंट की स्टडी को हम यहाँ पे इजीली स्टडी कर सकते हैं. Yes, in the laboratory of Philip Leader in Harvard, USA, the transgenic mouse model for the investigation of breast cancer was developed. वहाँ पे उन्होंने एक ऐसा आप बोल सकते हो कि ट्रांसजेनिक माउस को डेवलप किया फॉर द स्टडी ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर. उससे उन्हें क्या मिला कि द ऑन्कोजीन में माइक द MYC एंड रास वेयर द एनालाइज टू फाइंड आउट if they lead to breast cancer
इन माइस ट्रांसफॉर्म विद दिस जीन्स। उन्होंने ये जीन को क्या किया, माइक एंड रास जीन को ट्रांसफॉर्म किया दैट इन दैट माउस, और एंड दे एनालाइज कि इज दिस द जीन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेस्ट कैंसर। सो विद द हेल्प ऑफ द एनिमल वी कैन स्टडी कि कौन से जीन का क्या इफेक्ट हो रहा है, वी कैन इजिली स्टडी फ्रॉम दैट टेक्निक्स। नेक्स्ट इज द ट्रांसजेनिक फार्म्स एनिमल, फार्म एनिमल्स जिसको हम खुद क्या करते हैं, हम पालते हैं, जो पालतू जानवर होते हैं जो फार्म में हम उनको पालते फॉर फॉर डिज़ायर्ड प्रोडक्ट। यस, जैसे काऊ हो गया, तो इन सबको हम क्या कर रहे हैं, खुद खुद से हमको पाल रहे हैं टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द प्रोटीन, और हम बोल सकते टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, लाइक मिल्क उनसे मिल रहा है तो उसको हम बढ़ाने के लिए उसमें हम कुछ जीन को ट्रांसफ़र करेंगे ताकि वो क्या हो, वो प्रोडक्ट बढ़ जाए। सो विद द एडवेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द इंटेंशन ऑफ रिसर्चर is diverted to produce transgenic farm animals from which the mankind can derive greater benefits। yes, जिससे क्या हो, मैनकाइंड या ह्यूमन को क्या हो, ज़्यादा बेनिफिट्स हो, ऐसे उन्होंने सोचा कि कुछ उसमें चेंजेस किए जाए। सो मैनी ऑफ द फार्म एनिमल्स आर इम्प्रूव फॉर देयर मीट प्रोडक्शन, उनके मीट प्रोडक्शन के लिए, एंड एबिलिटी meat production ability, while some of them improve for milk yield and quality and disease free status for। for these purposes क्या किया, ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल्स पे उन्होंने उसमें उन्होंने कुछ जीन डालना स्टार्ट किया ताकि क्या हो, उनमें कुछ ना कुछ उनको ह्यूमन वेलफेयर के लिए क्या मिल सके, अच्छे प्रोडक्ट मिल सके, लाइक मीट प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके, मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके। टुडे at the beginning of the century the dairy cow provided 2000 to 3000 liter of milk a year. Today Holstein cow provides 6000 to liter on average and up to 8 to 10,000 for the best one। सो पहले वो 2 to 3 3,000 से ही लीटर सिर्फ दूध दे पाती थी। नाउ इट इज़ कि वो 6,000 उनका नॉर्मल है। अगर कोई अच्छी रही क्वालिटी तो 8 to 10,000 लीटर ऑफ लीटर वो रोज़ दूध दे सकती है। A century ago a hen laid about 70 eggs a year। Now, whereas today the best race lay up to 250 eggs per year। पहले 70 eggs देते थे, अब वो कितना दे पा रहे हैं, they are able to lay 250 eggs per year। This could be possible because of this advent of biotechnology। It is because of this biotechnology। The main objective for improved animal breeding program coupled with this new technology of gene transfer are given below। Main objective क्या है for this? It फर्स्ट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ मीट प्रोडक्शन, उसको इंक्रीज़ करना, इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ मीट को इंक्रीज़ करना, दैन मिल्क क्वालिटी एंड क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना, एग प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना, वूल क्वालिटी एंड क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना, डिसीज़ रेजिस्टेंस कैपेसिटी की कुछ एनिमल्स में ही उनमें इंक्रीज़ करना कैपेसिटी कि वो उस डिसीज़ के लिए रेजिस्टेंट हो जाए। सो दैट इज़ इम्प्रूविंग द quality of the animal, then the production of low cost pharmaceutical and biologicals। so ये सारी चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, we are using the transgenic farms animals। now transgenic cattle का क्या यूज़ होता है, for food production। For a few research report describing the use of transgenic technology in cattle, only one is directed towards the food production application। Yes, cattle क्यों use होता है, for the food production। Researcher introduce additional copies of bovine beta or kappa casein into the dairy cattle and evaluate the effect on milk production and composition। these are the genes are responsible for the ये प्रोटीन्स है, ये जो प्रोटीन्स है ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। these are the proteins which increase the quality of the milk। so this protein के जो जीन्स है, ये जीन को क्या किया रिसर्चर ने, उनमें ऐड किया ताकि उसके इफ़ेक्ट का क्या इफ़ेक्ट होता है, उसकी कंपोजिशन को स्टडी, ये सारी स्टडी करने के लिए
उन्होंने क्या किया, ये कैटल में इंट्रोड्यूस किया. So the researcher introduce additional copy of bovine beta and kappa casein, these are the protein, into the dairy cattle and evaluate the effect on milk production and composition. उसका क्या इफेक्ट होता है, उसके स्टडी के लिए उन्होंने वो जीन को उसमें इंसर्ट किया. ट्रांसजेनिक ऑस्प्रिंग हैड एन 8 to 20% increase in the beta casein and two-fold increase in the kappa casein. So what we observed that the transgenic offspring had an increase of 8 to 20% increase in the beta casein and two-fold increase in the kappa casein. These are the protein, and जितना ज़्यादा हमारा milk in protein से rich रहेगा उतना ज़्यादा ये beneficial रहेगा. So it has been studied with the help of this cattles. Then second उसका क्या यूज़ आएगा, transgenic cattle for the human therapeutic production. Human therapeutic production means ह्यूमन में कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ह्यूमन मिल्क में कुछ प्रोटीन्स होते हैं, उनकी उनकी स्टडी के लिए या उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए जो के ह्यूमन मिल्क में जो प्रोटीन होता है वही अगर उनमें भी मिल सके, कैटल्स में भी मिल सके तो इट विल बी बेनिफिशियल. यस, सो फॉर दैट इट इज़ ऑल्सो द कैटल को फिर से वहीं पे यूज़ किया गया. So the second application for genetically modified cattle is the production of human therapeutic protein. Human therapeutic proteins के production के लिए use किया गया था. Human proteins that have been expressed in milk include human lactoferrin, human alpha lactal albumin, then human serum albumin, and human bile salt stimulated lipase. These are the protein which is present in the human milk. The mammary gland in the dairy cow is an excellent protein production factory. On the other hand, a transgenic cow would be more than sufficient for production of annual world supply of factor 9, that is the plasma thromboplastin component that is used in the treatment of hemophilia. सो इजीली क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो फैक्टर फर्स्ट की ये जो फैक्टर्स है, दीज आर दी आप बोल सकते हैं प्रोटीन्स विच इज़ प्रेजेंट इन द मिल्क, ह्यूमन मिल्क. अब ह्यूमन मिल्क का अल्टरनेटिव अगर हम देखें, अगर कई बार कई मदर्स को इजीली मिल्क नहीं हो पाता है तो द अल्टरनेट क्या रहेगा, दे आर गिविंग द काउ मिल्क टू द इन्फेंट. जो छोटा बच्चा रहता है उसको क्या दिया जाता है, गाय का दूध दिया जाता है. अगर इफ़ द काउ हैव ऑल दिस प्रोटीन्स, अगर ये प्रोटीन्स ऑलरेडी उस काउ में प्रेजेंट रहते हैं तो व्हाट हैपन कि ह्यूमन के जो प्रोटीन्स है इट कैन इजीली हमें इजीली किससे मिल रहे हैं, काउ से. तो ये एक तरह से आप ह्यूमन मिल्क का अल्टरनेटिव हम देख सकते हैं इसको. यस, और ये सेकंड इसका क्या बोला गया है कि जो factor 9 which is responsible for the plasma thromboplastin component, जो एक component है which is used for the treatment of the hemophilia. So for this इसके लिए भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, we are using the cattles for the production of this factor 9 which is used for the treatment of the hemophilia. So these are the various application for which the cattle has been used. In 1990, Tracy the transgenic cow was born in Scotland and could produce a human protein in her milk for the human therapeutics. एक जो cow थी जिसका नाम was born, that is सॉरी, इन 1990 ट्रेसी जो उसने ट्रांसजेनिक काउ वॉज डेवलप हुआ जिसमें दे हैव द कैपेसिटी कि वो क्या ह्यूमन थेरापेटिक्स को डेवलप कर सके. यस, ह्यूमन प्रोटीन्स को डेवलप कर सके. एंटीबॉडीज आर करंटली यूज फॉर मैनी डिफरेंट ह्यूमन क्लिनिकल एप्लीकेशन इंक्लूड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज, कैंसर, transplant organ rejection, autoimmune disease, and for use as antitoxin. To make human antibody product, the genetically modified cows are immunized with the vaccine containing the disease agent. They are immunized for to make human antibody.
अगर ह्यूमन एंटीबॉडी को हमको बनाना है, सो फॉर दैट दे आर मॉडिफाइड, दे इम्यूनाइज, वो एक जो काऊ है उसको वो क्या कर सकते हैं, इम्यूनाइज विद द वैक्सीन कंटेनिंग द डिसीज एजेंट. So it's for this purpose also the cattle can be used. Then next is the transgenic sheep. अब sheep किसके काम में आता है? ये sheep हमें एक तो मीट प्रोवाइड करता है, दूसरा वूल प्रोवाइड करता है. सो हम क्या करेंगे, वी आर इंक्रीजिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द वूल एंड द मीट ऑफ द शिप. सो हियर द कुछ जीन को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिसके कारण उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी क्या हो, इंक्रीज हो, उनमें प्रोटीन जो है वो इंक्रीज हो, ताकि वो मैक्सिमम अमाउंट में वूल बना सकें. यस. So the gene transfer technology is applied to sheep to produce transgenic sheep which is able to achieve better growth, उसकी ग्रोथ के लिए, and for the meat production as well as serve as a bioreactor. The human growth hormones, that is human growth hormone gene is introduced in sheep for promoting the growth and meat production. ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं शिप में, ताकि हम क्या कर सके, इंक्रीज कर सके ग्रोथ और ग्रोथ एंड मीट प्रोडक्शन को. बैक्टीरियल जीन, दैट इज सिस ई एंड सिस M are concerned with the biosynthesis of cysteine amino acid involved in the formation of keratin protein found in wool. Both these genes are identified, cloned and introduced in sheep to increase wool production and to improve the quality of the wool. So यहाँ पे हमने क्या किया कि bacterial gene, these two genes are responsible for the production of the this beta is responsible for the keratin protein which is found in the which increase the quality of the wool. So उन्होंने क्या किया, उसको इंट्रोड्यूस किया शिप में ताकि उसकी क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके wool production and to increase the quality of the wool. So these are the method by which we increase the quality and quantity of the wool. Next is the transgenic pig. The objective of gene transfer in pig is to increase growth and meat production and to act as bioreactor. Maximum आप इसमें देखेंगे for the growth and meat के लिए and use as a bioreactor. The pig are regarded as the most suitable animal to be bred for the heart transplant because a pig heart is about same size as the human heart, and the pig heart valve have been used in human heart surgery for over a decade. The pig clone is the first step towards providing animal organ and tissues for human transplant. It is called as xenotransplantation. जो हमने लास्ट इसमें बात की जीनोग्राफी में, दैट इज़ द ट्रांसप्लांट ऑफ सेल एंड टिश्यू फ्रॉम वन स्पीशीज़ टू अनदर. सो इट इज़ द जीनो ट्रांसप्लांटेशन कि हम पिग का डायरेक्टली क्या यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गन और टिश्यू यूज़ कर सकते हैं फॉर द ट्रांसप्लांटेशन. सो फॉर द ट्रांसप्लांटेशन एंड टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ द ह्यूमन. ओके. सो यहाँ पे हम जो मोस्ट सुटेबल यूज़ हो रहा है पिग का इज़ यूज़ फॉर द हार्ट ट्रांसप्लांट बिकॉज द पिग हार्ट और हमारा हार्ट कैसा है, सेम है. सो फॉर दिस वी आर यूजिंग दिस पिग, एंड जिससे हम इजीली क्या कर सकते हैं, वहाँ से जीनो प्लांटेशन भी कर सकते हैं. जीनो प्लांटेशन इज़ द transfer of species cells and tissues from the one species to the another species. Yes. So next is the fish. Fish को transgenic fish हम use करते हैं. It is for the हमको उससे मीट मिलता है, हमें उससे ऑयल मिलता है, हमें उससे प्रोटीन मिलता है. सो दीज आर द प्रोडक्ट विच वी गॉट फ्रॉम द फिश. और इसी प्रोडक्ट को हम लार्ज अमाउंट में लेने के लिए हम फिश का उपयोग कर सकते हैं. यस. द कमर्शियल इम्पोर्टेंस फिश लाइक द अटलांटिक सैल्मन, कैटफिश, गोल्डफिश, तिलापिया, zebrafish, common crop, rainbow trout, etc. are been transfected with the growth hormone. हम उसमें growth hormone डाल देंगे. Chicken crystalline protein and E. coli hygromycin resistant gene. Yes, this transgenic fish show increased cold tolerance
ठंडे इसमें वो टॉलरेट, ठंडे पानी को भी टॉलरेट कर सकता है, कोल्ड इन्वायरमेंट को भी टॉलरेट कर सकता है। इम्प्रूव ग्रोथ एंड इट्स क्वालिटी and the quantity and quality of fish protein as well as its prevention are the factor affecting the economic value of the fish. So easily हम इससे क्या कर रहे हैं, उसकी quality और quantity of fish protein को बढ़ा रहे हैं। we are increasing their preservation techniques, अगर वो ज़्यादा इन cold इसमें रह सकते हैं तो we can easily उसको store करके रख सकते हो। so these are the application for which we are using this transgenic fish. Next is the transgenic chickens also carry an express foreign gene. जो chickens है, they are easily express and carry the foreign gene. They could be used to improve the genetic makeup of the existing strain with respect to built-in resistant to viral and coccidial diseases, better feed efficiency, lower fat cholesterol level, and high protein containing egg, and better meat quality. सो हम यहाँ पे जो चिकन्स है वी आर यूज़ हम इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर द रेजिस्टेंट ऑफ द वायरल एंड कोकोडियल डिसीज़। उसमें इन बिल्ड उनमें रेजिस्टेंट डेवलप कर ले वायरल डिसीज़ के अगेंस्ट। कोकोडियल डिसीज़ मीन्स विद द हेल्प ऑफ द क्रोकोडाइल जो डिसीज़ होते हैं, बेटर फीड एफिशिएंसी उनमें बढ़ा सके, उनमें लोअर फैट कर सके, कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो कर सके, हाई प्रोटीन कर सके। सो दिस उससे हाई प्रोटीन जो भी एग है हमें मिल सके, बेटर क्वालिटी ऑफ मीट मिल सके। सो दीज आर दी एप्लीकेशन या दीज आर दी यूज फॉर विच वी कैन यूज दिस चिकन फॉर और you can use this transgenic chicken for the human welfare. So from this all these एनिमल्स से हमें क्या मिल रहा है, कुछ ना कुछ हमें आउटपुट मिल रहा है। टू गेट बेटर आउटपुट फ्रॉम देयर वी कैन यूज़ दिस एनिमल एज अ ट्रांसजीन। सो इट इज़ इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन लाइफ। यस, हम हमें वो कुछ ना कुछ उसमें से बेनिफिट हो रहा है। फॉर दिस बेनिफिट वी आर यूजिंग दिस एनिमल फॉर आवर ह्यूमन वेलफेयर। सो दीज आर द यूज ऑफ दिस बायोटेक्नोलॉजी फॉर आप बोल सकते हो कि हमने यूज़ किया फॉर दी हेल्थ केयर सेक्टर में बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया, हमने जीन थेरेपी के लिए यूज़ किया। मतलब हम जीन लेवल पे कुछ उसमें चेंजेस करना चाहते हो, हम बायोटेक का यूज़ कर सकते हैं। वी आर मॉडिफाइड, हम प्लांट को मॉडिफाइड कर रहे हैं, हम एनिमल्स को मॉडिफाइड कर रहे हैं फॉर गेटिंग बेटर result or for getting better product from them. So these are the some application of this biotechnology for which is used for increase the quality of life or lifestyle of the human. So this we have completed that the application of biotechnology. Till now we have completed our 80% of the chapter. Now we have only left with our bioethics, biopiracy and biopatent. So these are the some points we will discuss in later. So till now we have completed application of biotechnology. Okay.